Excellency, I have the honor to present the credentials which inform that Comrade Kim Jong-un, Chairman of the State Affairs Commission of the Democratic People's Republic of Korea, has appointed me as Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the DPRK to the Republic of India. Excellency, I heartily accept your credentials. My warm wishes to you for your successful tenure in India. Thank you. Your Excellency, I have the honor to present to you the letter of recall of my predecessor and the letter of credence by which His Excellency President Macky Sall appoints me as Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary to the Republic of India. Excellency, I heartily accept your credentials. My warm wishes to you for your successful tenure in India. On behalf of the President of the Republic of Trinidad and Tobago, I hereby take great privilege and honor to present the letter of recall of my predecessor and the letter of credence on my own behalf as High Commissioner to the Republic of India. Excellency, I heartily accept your credentials. My warm wishes to you for your successful tenure in India. Excellency, I have the honor and privilege to present to you my letter of credentials from the government of Mauritius, appointing me as High Commissioner of Mauritius to the government of India. Excellency, I heartily accept your credentials. My warm wishes to you for your successful tenure in India. Thank you. Your Excellency, I have the honour to present the letter of credence signed by the Governor-General of Australia, appointing me as High Commissioner to India, along with the letter of recall for my predecessor. Excellency, I heartily accept your credentials. My warm wishes to you for your successful tenure in India. Thank you. Your Excellency, I have the great honor to present to you the letters of recall of my predecessor, and as well as the letters of credence by which the President of the Republic of Cote d'Ivoire, His Excellency Alassane Ouattara, appoints me as Ambassador of the Republic of Cote d'Ivoire to the Republic of India. Excellency, I heartily accept your credentials. My warm wishes to you for your successful tenure in India. Thank you. Your Excellency, I have the honor and the great pleasure to present to you my letters of credence by which His Excellency Paul Kagame, President of the Republic of Rwanda, appoints me as the High Commissioner of the Republic of Rwanda to the Republic of India. Please accept, Your Excellency, my letters of Excellency, I heartily accept your credentials. My warm wishes to you for your successful tenure in India. Thank you. Excellencies, I am delighted to receive your credentials. I thank you for your warm words of friendship. We are living in challenging times. The COVID-19 pandemic poses several limitations on us. We are fortunate that digital technology has enabled us to carry out our functions in an innovative manner. This is the first time that we have had credentials presentation in Rashtrapati Bhavan through this medium, and for that reason today is a very special day in our engagement with the diplomatic community in India. I thank you for participating in today's function. Excellencies, India remains committed to harnessing the limitless possibilities of the digital pathway for the advancement of its people and the world at large. India has also been at the forefront of providing support
to fellow countries to fight the COVID-19 pandemic. To deal with the present crisis, we need greater global cooperation. We are happy that we have vibrant relations with all the 7 countries represented here, and we are committed to deepen our relations further. Our relations with the Democratic People's Republic of Korea are warm and friendly. Recently, we celebrated the 45th anniversary of our diplomatic ties. We are happy that our development partnership is making progress. India-Senegal relations are close and special. Our leaders have been meeting each other at regular intervals. This bodes well for our growing ties. Excellencies, with Trinidad and Tobago, our bonds are rooted in shared history, kinship and culture. This year marks the 175th anniversary of Indian Arrival Day in Trinidad and Tobago. We are committed to further strengthen these special ties. India and Mauritius share an enduring and time-tested relationship. I was honored to be the chief guest at the 50th anniversary celebrations of the Independence Day of Mauritius in 2018. We look forward to adding further depth to our partnership. I am delighted that our bilateral relations with Australia are deepening across a wide range of sectors. It was an honor for me to pay a state visit to Australia in 2018. Our high-level exchanges in the recent past have indeed added a new momentum to our bilateral and global partnership. India and Côte d'Ivoire ties are warm and friendly. We are committed to making greater progress in our economic and development partnerships. Our relationship with Rwanda is on a firm footing. Recent high-level visits from both sides have added a new dynamism to our ties, and we want to continue to build on them. Excellencies, the global community is faced with an unprecedented situation. Let us all come together as friends and as partners to make the world a better place for ourselves and for our future generations. Excellencies, it has been a pleasure to meet you in this innovative format. I wish you all success in your tenure in India and a safe and pleasant stay here. Thank you all. कॉर्पोरल देवेंद्र मेहता, भारतीय वायुसेना सुरक्षा। 18 नवंबर 2017 को जम्मू और कश्मीर में बांदीपुरा जिले के चंद्रेगर गांव में भारतीय वायुसेना के गरुड़ सैन्य टुकड़ी और 13 राष्ट्रीय राइफल्स द्वारा संयुक्त रूप से एक आक्रामक कार्रवाई शुरू की गई। गरुड़ टुकड़ी गुप्त रूप से उस घर तक पहुंची जहां संदिग्ध आतंकवादी छिपे हुए थे और उन पर घात लगाकर हमला किया। कॉर्पोरल देवेंद्र मेहता ने अपने साथी को, जो एलएमजी चला रहे थे, के साथ घातक रणक्षेत्र तैयार करने में मदद की, जिससे कि आतंकवादियों के बचने का हर संभव मार्ग अवरुद्ध हो गया। घर में छिपे हुए 6 आतंकवादी गरुड़ टुकड़ी पर गोलियां चलाते हुए और ग्रेनेड फेंकते हुए निकलकर भागे। आपने अदम्य साहस का परिचय देते हुए एक प्रभावी जवाबी कार्रवाई की और सटीक निशाने से एक आतंकवादी को मार गिराया। आगे बढ़ते आतंकवादियों को रोकते हुए आपने एलएमजी साथी को कवर प्रदान किया। आपने अपनी सुरक्षा की परवाह किए बगैर गोलीबारी में गंभीर रूप से घायल अपने साथी को सुरक्षित निकालते हुए अदम्य साहस का परिचय दिया और 6 आतंकवादियों को निष्प्रभावी करने की जवाबी कार्रवाई के लिए एलएमजी की कमान स्वयं अपने हाथ में ली। इस प्रकार कॉर्पोरल देवेंद्र मेहता ने सशस्त्र आतंकवादियों से लड़ते हुए अदम्य साहस का परिचय दिया। कॉर्पोरल देवेंद्र मेहता।
कॉर्पोरल नीलेश कुमार नयन, भारतीय वायुसेना, सुरक्षा, मरणोपरांत। विशिष्ट आसूचना के आधार पर जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा जिले के हाजिन गांव के बाहर आतंकवादियों की खोजबीन के लिए 10 अक्टूबर 2017 की रात को एक घेराबंदी की गई। 11 अक्टूबर को सुबह 4:40 पर भारी मात्रा में हथियारबंद 5 से 6 आतंकवादियों ने अपने छिपे हुए स्थान से स्वचालित हथियारों से कॉर्पोरल नीलेश कुमार नयन के मोर्चे पर सीधी गोलीबारी की और ग्रेनेड दागे। उन्होंने तुरंत जवाब दिया और छिपे हुए आतंकवादियों पर भारी मात्रा में सटीक जवाबी गोलीबारी की और उनके बच निकलने में बाधा डाल दी। गोलीबारी के दौरान उनके मार्गदर्शक घायल हो गए, पर उन्होंने अपने साथी की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए गोलीबारी जारी रखी। तभी आतंकवादी उनके स्थान की ओर लगातार गोलीबारी करने लगे, जिसके कारण गोली लगने से वे जख्मी हो गए। अनुकरणीय साहस का प्रदर्शन करते हुए कॉर्पोरल नयन अपने जगह पर डटे रहे और गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद उन्होंने एक आतंकवादी को मार गिराया। शेष आतंकवादी अब उनकी ओर गोलीबारी करने लगे। इस लड़ाई के दौरान कॉर्पोरल नयन ने दूसरे आतंकवादी को घायल कर दिया। तथापि इस गोलीबारी में उनको कई गोलियां लगी और वे वीर गति को प्राप्त हुए। कॉर्पोरल नीलेश कुमार नयन ने आतंकवादियों का मुकाबला करते हुए पराक्रम, दृढ़ संकल्प और सखापन की भावना का प्रदर्शन करते हुए राष्ट्र के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। स्वर्गीय कॉर्पोरल नीलेश कुमार नयन की पत्नी श्रीमती मिनशा नयन और साथ में उनकी माताजी श्रीमती बुलबुल देवी। नायक नरेंद्र सिंह, नवी बटालियन, द पैराशूट रेजिमेंट, विशेष बल। पच्चीस जून 2017 को प्रातः 4:45 पर जम्मू और कश्मीर के राजौरी जिले में नियंत्रण रेखा पर अपनी सैन्य टुकड़ी ने हथियारबंद शत्रुओं की पहचान की। चुनौती पाकर शत्रुओं ने अंधाधुंध गोलीबारी प्रारंभ कर दी और घनी झाड़ी में बिखर गए। जब गोलीबारी तेज हो गई, अपना दल चट्टानों के पीछे छिपे हुए 3 शत्रुओं के समूह से हो रही भारी गोलीबारी में बीच आ गया। अपनी टुकड़ी के लिए गंभीर खतरे को भांपते हुए नायक नरेंद्र सिंह ने उत्कृष्ट युद्ध कौशल का परिचय देते हुए शत्रुओं का सामना किया और उनको बाहर निकालने के लिए ग्रेनेड दागे। अपने आप को घिरा हुआ पाकर शत्रुओं ने भागते हुए गोलीबारी की और साथ ही साथ ग्रेनेड भी दागे, परंतु इस गोलीबारी से निर्भीक नायक नरेंद्र ने एक शत्रु को मार गिराया और निकट के मुकाबले में अन्य 2 को गंभीर रूप से जख्मी कर दिया। नायक नरेंद्र सिंह ने कर्तव्य के प्रति अटूट समर्पण, संयम तथा असाधारण युद्ध कौशल का परिचय दिया और अकेले ही एक शत्रु सैनिक को मार गिराया तथा अन्य 2 को गंभीर रूप से घायल कर दिया। नायक नरेंद्र सिंह। सार्जेंट खैरनार मिलिंद किशोर, भारतीय वायुसेना, गरुड़, मरणोपरांत। विशिष्ट आसूचना के आधार पर जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा जिले के हाजिन गांव के बाहर आतंकवादी समूह की खोजबीन के लिए 10 अक्टूबर 2017 की रात को एक घेराबंदी की गई। 11 अक्टूबर को प्रातः 4:40 पर भारी मात्रा में हथियारों के साथ 5 से 6 आतंकवादियों ने अपने छिपने के ठिकाने से सार्जेंट मिलिंद की ओर स्वचालित हथियारों और ग्रेनेड से गोलीबारी शुरू कर दी। सार्जेंट मिलिंद ने आतंकवादियों पर जवाबी गोलीबारी की और अपने सटीक निशाने से उन्हें रोके रखा। तथापि आतंकवादियों द्वारा स्वचालित हथियारों और ग्रेनेड्स की भारी गोलीबारी के कारण सार्जेंट मिलिंद को कई गोलियां लगी और वे जख्मी हो गए। बुरी तरह से जख्मी होने के बावजूद अपनी सुरक्षा की किंचित भी परवाह किए बिना वायुसेना का ये योद्धा डटा रहा और अपनी सटीक गोलीबारी को जारी रखते हुए आतंकवादियों के बच निकलने के रास्ते को रोक दिया। रास्ता बंद हो जाने से आतंकवादियों ने अपने बचाव के लिए अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी और सार्जेंट मिलिंद के नजदीक आ गए। इस नजदीकी लड़ाई के दौरान सार्जेंट मिलिंद ने एक आतंकवादी को मार गिराया और दूसरे को बुरी तरह से घायल कर दिया। तथापि उन्हें भी गोली लग गई और अंततः
वे वीर गति को प्राप्त हुए। सार्जेंट खैरनार मिलिंद किशोर ने शस्त्रों से लैस आतंकवादियों का सामना करते समय अपनी सुरक्षा की तनिक भी परवाह किए बिना अदम्य निडरता और असाधारण साहस का परिचय दिया और राष्ट्र के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। स्वर्गीय सार्जेंट खैरनार मिलिंद किशोर की पत्नी श्रीमती हर्षदा खैरनार मिलिंद और साथ में उनकी माताजी श्रीमती सुनंदा किशोर खैरनार। फरवरी 2017 पुलिस स्टेशन हाजिन, जिला बांदीपुरा, जम्मू एवं कश्मीर के पैरी मोहल्ला में छिपे 2 विदेशी आतंकवादियों के खिलाफ सेना एवं सीआरपीएफ के संयुक्त ऑपरेशन के दौरान सामरिक बुद्धिमत्ता व अदम्य साहस का प्रदर्शन करते हुए श्री चेतन कुमार चीता, कमांडेंट 45 बटालियन, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, अपने साथियों के साथ मिलकर युक्ति पूर्वक तरीके से छिप कर आगे बढ़े और मुठभेड़ तथा गोलीबारी के क्षेत्र में पहुंच गए। आपने परिसर के अंदर छिपे एक आतंकवादी को देखा। आगे आने वाले अत्यधिक खतरे की परवाह न करते हुए एक ही क्षण में आपने अपने स्थान से छलांग लगाई और आतंकवादी पर हमला कर उसे मार गिराया। इसी बीच दूसरे आतंकवादी की गोलियों की बौछार में आपको तथा आपके साथ चल रहे जवानों को अनेक गोलियां लगी। गंभीर रूप से घायल श्री चेतन कुमार चीता अपने अद्भुत नेतृत्व गुण का प्रदर्शन करते हुए टुकड़ी को जवाबी गोलीबारी करने के लिए प्रेरित करते रहे तथा आतंकवादी पर स्वयं भी गोलीबारी करते रहे और अपनी टुकड़ी को और क्षतिग्रस्त होने से बचाया। श्री चेतन कुमार चीता ने कट्टर आतंकवादियों का सफाया करने की कार्रवाई में अपने जीवन को जोखिम में डालते हुए असाधारण नेतृत्व, अनुकरणीय वीरता, अदम्य साहस और युद्धक भावना का प्रदर्शन किया। श्री चेतन कुमार चीता। सिपाही वेंकटराव अबोतुला, 8वीं बटालियन दी मद्रास रेजिमेंट। अक्टूबर 2016 में सिपाही वेंकटराव अबोतुला जम्मू और कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में आर्मी कैंप में रात को संतरी पोस्ट पर तैनात थे। सुबह के समय आपने 25 से 30 मीटर की दूरी पर फेंस के बाहर संदिग्ध गतिविधि देखी तो आपने तुरंत गार्ड कमांडर और बाकी गार्ड जो नजदीकी बंकर में थे को सतर्क किया तथा दोनों संदिग्ध व्यक्तियों को चुनौती दी। आतंकवादियों ने अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। आपने तुरंत जवाबी अचूक फायर करके आतंकवादियों को वहीं पर रोक दिया। निरंतर जवाबी गोलीबारी में आतंकवादी गंभीर रूप से घायल हो गए। आतंकवादियों ने संतरी पोस्ट पर सटी गोलीबारी जारी रखी। अपने जीवन को गंभीर खतरे की परवाह न करते हुए सिपाही अबोतुला ने लूप होल के द्वारा आतंकवादियों पर गोलीबारी जारी रखी और एक आतंकवादी को मौत के घाट उतार दिया। सिपाही वेंकटराव अबोतुला के शौर्य, साहसपूर्ण और त्वरित कार्रवाई से गुप्त हमले को रोका जा सका, जिसके परिणाम स्वरूप 3 आतंकवादियों को मार गिराया गया। सिपाही वेंकटराव अबोतुला। मेजर विजयंत बिष्ट, 4वीं बटालियन जम्मू एवं कश्मीर लाइट इन्फेंट्री। 6 जून 2017 को रात 9:40 पर जम्मू एवं कश्मीर के उरी जिले के चोरगली जंगल में मेजर विजयंत बिष्ट को घुसपैठ का पता लगा। भीषण गोलीबारी के दौरान कुछ आतंकवादी ग्वाल्टा जंगल में घुस गए। 7 जून को मेजर विजयंत ने आतंकवादियों का पता लगाया। आतंकवादियों का निकट से मुकाबला करते हुए प्रथम स्काउट घायल हो गया। भीषण गोलीबारी के बीच आप अपने जीवन की परवाह किए बगैर घुटनों के बल आगे बढ़े और अपने घायल साथी को खींचकर ओट के पीछे लाए। आपने अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की बिल्कुल भी परवाह न करते हुए एवं विषम मौसमी परिस्थितियों में भी बचकर निकलने वाले आतंकवादियों का निर्भीक होकर पीछा किया। 9 जून को आपकी दृढ़ता फलीभूत हुई और आतंकवादियों को पुनः देखा गया। आतंकवादियों की निरंतर भारी गोलीबारी से बेपरवाह होकर
उन पर ग्रेनेड दागकर एक आतंकवादी को आपने मार गिराया। दूसरा आतंकवादी गोलीबारी करते हुए आपके सामने आ गया, जिसे आपने बिल्कुल निकट से मार गिराया। मेजर विजयंत बिष्ट ने असाधारण वीरता, कर्तव्य से ऊपर उठकर अदम्य साहस और अनुकरणीय नेतृत्व का परिचय देते हुए 2 आतंकवादियों को मार गिराया। मेजर विजयंत बिष्ट। लांस नायक बदर हुसैन, 4वीं बटालियन, जम्मू और कश्मीर लाइट इन्फेंट्री। 7 जून 2017 को लांस नायक बदर हुसैन जम्मू और कश्मीर के उरी जिले के कोवाल्टा जंगल के अंदर तलाशी दल के अग्रणी स्काउट थे। आतंकवादियों की तलाशी के निरंतर अभियान में उनको आतंकवादियों के बारे में सूचना प्राप्त हुई और उन्होंने तत्काल अपने दल को सतर्क कर दिया। निरंतर गोलीबारी में उनका साथी गंभीर रूप से घायल हो गया। अपने साथी के लिए खतरे को भांपते हुए उन्होंने अपनी निजी सुरक्षा की परवाह किए बगैर स्वयं को खतरे में डाल दिया और आतंकवादियों पर बड़े पैमाने पर गोलीबारी की, जिससे कि दूसरे लोग उनके साथी को सुरक्षित जगह पर ले गए, परंतु आतंकवादी बच निकले। 9 जून की दोपहर को 1:45 पर जब आतंकवादी पुनः दिखाई दिए तो उन्होंने उनकी नाकेबंदी कर दी और दृढ़ संकल्प का परिचय देते हुए उन पर सटीक गोलीबारी की, जिससे एक आतंकवादी घटनास्थल पर ही मारा गया और दूसरा लकड़ी के लट्ठे के पीछे छिपा हुआ आतंकवादी गंभीर रूप से जख्मी हो गया। अदम्य साहस का प्रदर्शन करते हुए रेंगते हुए वो आगे बढ़े और बिल्कुल निकट से दूसरे आतंकवादी को भी धराशायी कर दिया। लांस नायक बदर हुसैन ने अपने साथी के प्राणों की रक्षा और 2 आतंकवादियों की मौत को घाट उतारने में शूरवीरता और कर्तव्य से उठकर अदम्य साहस का प्रदर्शन किया। लांस नायक बदर हुसैन। मेजर जनरल माधुरी कानिटकर, विशिष्ट सेवा मेडल। सिपाही आरिफ खान, ग्रेनेडियर रेजिमेंट, 55वीं बटालियन, दी राष्ट्रीय राइफल्स। मार्च 2017 में जम्मू और कश्मीर के पुलवामा जिले के एक गांव में 2 आतंकवादियों के छिपे होने की सूचना प्राप्त होने पर लक्षित क्षेत्र के चारों ओर बुद्धिमत्ता से एक घेराबंदी की गई। सिपाही आरिफ खान इस घेराबंदी का हिस्सा थे। सतर्कता का परिचय देते हुए उन्होंने 2 व्यक्तियों की संदिग्ध गतिविधियों को देखा, जो खिड़की से कूदकर घेराबंदी से भागने का प्रयास कर रहे थे। सिपाही आरिफ खान ने तत्काल उन्हें चुनौती दी। चुनौती दिए जाने पर संदिग्ध व्यक्तियों ने तुरंत उन पर गोलीबारी शुरू कर दी। सिपाही आरिफ खान ने अदम्य साहस, अनुकरणीय वीरता का प्रदर्शन करते हुए व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह न करते हुए तुरंत आतंकवादी पर जवाबी गोलीबारी शुरू कर दी और एक आतंकवादी को वहीं ढेर कर दिया और दूसरे आतंकवादी को बचकर भागने से रोक दिया। सिपाही आरिफ खान ने आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान अनुकरणीय साहस और सूझबूझ का परिचय दिया, जिसके परिणाम स्वरूप एक कट्टर आतंकवादी मारा गया। सिपाही आरिफ खान। शत्रु का मुकाबला करने के सिवाय असाधारण वीरता के लिए कीर्ति चक्र श्री प्रमोद कुमार, कमांडेंट, 49 बटालियन, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, मरणोपरांत। 15 अगस्त 2016 को 8 बजे के लगभग नौहट्टा चौक, श्रीनगर में एक परित्यक्त इमारत में छुपे आतंकवादी ने उस क्षेत्र में तैनात 28 बटालियन केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। श्री प्रमोद कुमार, कमांडेंट, 49 बटालियन, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल घटनास्थल पर कूच कर गए और उन्होंने भारी गोलीबारी के बीच घायल जवानों को वहां से हटाकर दूसरे जवानों को वहां पर तैनात किया। उसके बाद अन्य ऑपरेशन कमांडरों के साथ मिलकर लक्षित भवन को पूरी तरह से चारों ओर से घेर लिया। वे बुलेट प्रूफ गाड़ी में अपने जवानों के साथ भीषण गोलीबारी में डट गए।
पूरी दक्षता से आतंकवादियों के छिपने के ठिकाने के बिल्कुल नजदीक तक गए और एक आतंकवादी के पैर में गोली मारकर उसे घायल कर दिया। अपनी सुरक्षा की तनिक भी परवाह न करते हुए वे गाड़ी से उतरे। जैसे ही उन्होंने घायल आतंकवादी पर गोली चलाई, दूसरे आतंकवादी द्वारा चलाई गई गोली उनके सिर में लग गई। उन्हें तुरंत आर्मी बेस अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। इस प्रकार श्री प्रमोद कुमार कमांडेंट ने असाधारण वीरता, अनुकरणीय साहस तथा अपने कर्तव्य के प्रति उच्चतम समर्पण का परिचय देते हुए राष्ट्र की सेवा में सर्वोच्च बलिदान दिया। स्वर्गीय श्री प्रमोद कुमार की पत्नी श्रीमती नेहा त्रिपाठी और साथ में हैं उनकी माताजी श्रीमती कुसुम देवी। हवलदार गिरीश गुरुंग, 4थी बटालियन, प्रथम गोरखा राइफल्स, मरणोपरांत। हवलदार गिरीश गुरुंग खोजी दस्ते के कमांडर के रूप में जब जम्मू और कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में घनी झाड़ियों और वनों के बीच घाटी जैसे स्थान में तलाशी अभियान का नेतृत्व कर रहे थे, तभी छिपे हुए एक आतंकवादी ने उन पर गोलीबारी शुरू कर दी, जिससे उनकी जांघ में गोली लग गई। बहुत अधिक मात्रा में रक्त बहने के बावजूद उन्होंने अपनी टीम के ऊपर आए खतरे को महसूस किया और अपनी सुरक्षा की बिल्कुल भी परवाह न करते हुए अपनी AK-47 राइफल से सटीक फायर करके एक आतंकवादी को मार गिराया। तत्पश्चात उन्होंने उस जगह का पता लगाया जहां से एक अन्य आतंकवादी उनके दल के ऊपर गोलीबारी कर रहा था। गंभीर रूप से जख्मी होने के बावजूद अपनी वीरता का परिचय देते हुए उन्होंने उस दिशा में एक हथगोला फेंका और बेहद करीब जाकर उस आतंकवादी पर गोलीबारी करते हुए उसे वहीं पर ढेर कर दिया, परंतु अपने गंभीर जख्मों के कारण वे वीर गति को प्राप्त हो गए। इस प्रकार हवलदार गिरीश गुरुंग ने सर्वोच्च बलिदान देने से पहले गोलीबारी के दौरान निस्वार्थपूर्ण अदम्य साहस और अद्वितीय आक्रामक भावना का प्रदर्शन किया। स्वर्गीय हवलदार गिरीश गुरुंग की पत्नी श्रीमती पंचा माया गुरुंग और साथ में है उनके पिताजी श्री दुर्गा बहादुर गुरुंग। शत्रु का मुकाबला करने के सिवाय शौर्यपूर्ण कार्यों के लिए शौर्य चक्र मेजर गोसावी कुणाल मुनागिर, तोपखाना रेजिमेंट, 166वीं बटालियन दी मीडियम रेजिमेंट, मरणोपरांत। नवंबर 2016 में मेजर गोसावी कुणाल मुनागिर ने जम्मू और कश्मीर के नगरोटा जिले में स्थित सेना बेस में हुए आतंकवादी हमले के खिलाफ अपनी त्वरित कार्रवाई टीम का नेतृत्व करते हुए तुरंत जवाबी कार्रवाई की। आतंकवादियों द्वारा भारी गोलीबारी किए जाने के बावजूद वो उस क्षेत्र के बिल्कुल नजदीक पहुंच गए और सफलतापूर्वक इमारत में फंसे 2 अधिकारियों, एक घायल कनिष्ठ कमीशन प्राप्त अधिकारी और 3 अन्य रैंकों को बचाया। बहुत नजदीक से होने वाली भारी गोलीबारी में घायल होने के बावजूद उन्होंने आतंकवादियों को रोके रखा जब तक उन्हें वहां से निकाला नहीं गया। यहाँ तक कि जब उन्हें वहां से निकाला भी जा रहा था तब भी वे लगातार आतंकवादियों की अवस्थिति की सूचना देते रहे। वे घायल होने के कारण बाद में शहीद हो गए। मेजर गोसावी कुणाल मुनागिर ने अदम्य वीरता, अनुकरणीय नेतृत्व, अदम्य साहस और अपने कर्तव्य के प्रति संपूर्ण निष्ठा निभाते हुए राष्ट्र हेतु सर्वोच्च बलिदान दिया। स्वर्गीय मेजर गोसावी कुणाल मुनागिर की पत्नी श्रीमती उमा के गोसावी और साथ में है उनकी माताजी श्रीमती वृंदा M गोसावी। लांस नायक रघुबीर सिंह, दिभार रेजिमेंट,
प्रथम बटालियन द राष्ट्रीय राइफल्स मरणोपरांत। फरवरी 2017 में लांस नायक रघुबीर सिंह जम्मू और कश्मीर के कुलगाम में एक गांव में घेराबंदी तथा तलाशी ऑपरेशन करने वाली तलाशी टीम के स्काउट्स थे। जैसे ही दल लक्षित घर की सबसे ऊपरी मंजिल पर पहुंचा, लांस नायक रघुबीर सिंह ने उनके गुप्त स्थल का भंडाफोड़ किया। तभी छिपे 4 आतंकवादियों ने अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। उन्होंने अनुकरणीय सूझबूझ का प्रदर्शन करते हुए अपने दल को गोलियों की दिशा के बारे में चेतावनी दी और सीधी गोलीबारी में निडरतापूर्वक आतंकवादियों का मुकाबला किया। अपने तलाशी दल के अन्य सदस्यों की रक्षा के लिए उन्होंने आतंकवादियों की गोलियों का सामना करने में निस्वार्थ रूप से स्वयं को झोंक दिया। वे गोली लगने के कारण घायल हो गए। अपनी परवाह न करते हुए उन्होंने सटीक गोलीबारी करते हुए एक आतंकवादी को मार गिराया और अन्य आतंकवादियों को भागने से भी रोका। बाद में वे अपने घावों के कारण वीरगति को प्राप्त हो गए। लांस नायक रघुबीर सिंह ने कर्तव्य निष्ठा से ऊपर उठकर साहसिक और वीरतापूर्ण कार्य का प्रदर्शन किया और राष्ट्र के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। स्वर्गीय लांस नायक रघुबीर सिंह की पत्नी श्रीमती रेखा और साथ में है उनकी माताजी श्रीमती खिमुली देवी। शत्रु का मुकाबला करने के सिवाय असाधारण वीरता के लिए कीर्ति चक्र मेजर प्रीतम सिंह कुनवार, 4th बटालियन द गढ़वाल राइफल्स। मई 2017 में 6 आतंकवादियों को जम्मू और कश्मीर के बारामूला जिले में नियंत्रण रेखा पर दूर से देखकर अद्भुत सामरिक बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए मेजर प्रीतम सिंह कुनवार ने अतिशीघ्र ही उन्हें घेरने का उपाय सोचा और आतंकवादियों के पूर्ण रूप से किलिंग जोन में आने तक की प्रतीक्षा की। उन्होंने आतंकवादियों के ऊपर बिल्कुल सही समय पर सटीक निशानेबाजी शुरू कर उन्हें अचंभित कर दिया। अचानक ही 2 आतंकी एक बड़े पत्थर के पीछे छिपकर भारी गोलीबारी करने लगे। उसी क्षण एक ग्रेनेड उनके बेहद करीब आ गिरा। अपनी जान की किंचित भी परवाह किए बिना उन्होंने रेंगते हुए 2 ग्रेनेड आतंकवादियों की तरफ फेंके और उन्हें वहीं ढेर कर दिया। अचानक उन्होंने एक आतंकवादी को विपरीत दिशा में कमान अधिकारी के दल की ओर चढ़ते हुए देखा और तुरंत अपने कमान अधिकारी को सूचित करते हुए अपनी दिशा को बदल दी। भारी गोलीबारी के बीच उन्होंने सटीक निशाना लगाकर तीसरे आतंकवादी को भी तत्काल मार गिराया। मेजर प्रीतम सिंह कुनवार ने शत्रु का मुकाबला करने में अनुकरणीय साहस, विषम परिस्थितियों में दृढ़ संकल्प, उच्चतम कोटि के शौर्य और अटूट धैर्य का परिचय दिया। मेजर प्रीतम सिंह कुनवार। अगस्त 2016 में लांस नायक कश्मीर सिंह घुसपैठिए आतंकवादियों के खात्मे के लिए तैनात टुकड़ी का हिस्सा थे। टुकड़ी ने 2 आतंकवादियों को जम्मू और कश्मीर के बारामूला जिले के क्षेत्र में देखा और भीषण गोलीबारी शुरू कर दी, जिसमें लांस नायक कश्मीर सिंह बुरी तरह से जख्मी हो गए। आपने अपनी सुरक्षा की परवाह किए बगैर अदम्य साहस का परिचय देते हुए आतंकवादियों पर लगातार कारगर गोलीबारी की, जिसके परिणाम स्वरूप टुकड़ी के बाकी साथियों को होने वाले नुकसान को रोका जा सका। आतंकवादियों के और नजदीक जाकर आपने एक आतंकवादी को अत्यंत समीप से मार गिराया। इसके बाद आपने सामरिक रूप से लाभकारी जगह पर अपने आप को तैनात कर दूसरे आतंकवादी को भागने से रोकने के लिए कारगर गोलीबारी की, जिसके फलस्वरूप टुकड़ी के बाकी जवान दूसरी दिशा से उस आतंकवादी को घेरकर उसका खात्मा करने में सफल हुए। लांस नायक कश्मीर सिंह ने जख्मी होने के बावजूद उत्कृष्ट कौशल नीति और वीरता का परिचय देते हुए 2 खूंखार आतंकवादियों के खात्मे को सुनिश्चित किया। लांस नायक कश्मीर सिंह। सूबेदार अब सूबेदार मेजर शबीर अहमद, 17वीं बटालियन दी जम्मू और कश्मीर राइफल्स।
अगस्त 2016 में सूबेदार शब्बीर अहमद ने घुसपैठ कर रहे आतंकवादियों को रोकने के लिए अपनी टुकड़ी के साथ बिजली की गति से प्रस्थान किया। टुकड़ी ने जम्मू और कश्मीर के बारामूला जिले के एक क्षेत्र में आतंकवादियों को देखकर भारी गोलीबारी की। जब आतंकवादियों ने भागने का प्रयास किया तो सूबेदार अहमद ने तत्काल ऑपरेशन को अपने नियंत्रण में लेते हुए सभी समीपस्थ पोस्टों को सचेत किया और कारगर युद्ध नीति के तहत अपनी टुकड़ी को तैनात किया। आतंकवादियों के बच निकलने के तमाम रास्तों को प्रभावी ढंग से सील करने के लिए आप प्रत्येक स्टॉप पर निरंतर अपनी टुकड़ी की स्थिति में परिवर्तन करते रहे। उत्कृष्ट बहादुरी एवं अनुकरणीय पहल का परिचय देते हुए आतंकवादियों की असरदार गोलीबारी के बीच रेंगते हुए आगे बढ़कर आपने एक आतंकवादी को मार गिराया। इसके पश्चात बचकर भागते हुए आतंकवादी को रोकने के लिए आपने सामरिक रूप से उपयुक्त जगह पर अपने आप को तैनात किया और भीषण गोलीबारी में उसे भी मार गिराया। सूबेदार शब्बीर अहमद ने सराहनीय सामरिक बुद्धि, असाधारण नेतृत्व एवं उत्कृष्ट बहादुरी का प्रदर्शन करते हुए 2 आतंकवादियों का खात्मा सुनिश्चित किया। सूबेदार मेजर शब्बीर अहमद। श्री विकास जाखड़, सहायक कमांडेंट केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल एवं मोहम्मद रियाज आलम अंसारी, उप निरीक्षक जीडी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल। तेईस नवंबर 2016 को झारखंड के लातेहार जिले के छिपादोहर के जंगली क्षेत्र में सशस्त्र माओवादियों का पीछा करते हुए 209 कोबरा का स्काउट दल, जिसका नेतृत्व सब इंस्पेक्टर जीडी मोहम्मद रियाज आलम अंसारी कर रहे थे, पर कोयल नदी के किनारे माओवादियों ने गोलियों की बौछार कर दी। एसआई जीडी मोहम्मद रियाज आलम अंसारी और उनकी साथी टुकड़ी ने तुरंत जवाबी कार्रवाई की। किसी भी खतरे की परवाह किए बिना श्री विकास जाखड़, सहायक कमांडेंट के नेतृत्व में बहादुर सिपाही अपने स्काउट दल की सहायता के लिए माओवादियों की ओर बढ़े और एक आक्रामक मुठभेड़ शुरू कर दी। एसआई मोहम्मद रियाज आलम अंसारी ने अपने स्काउट दल के साथ माओवादियों पर हमला कर उन्हें पीछे लौटने पर मजबूर कर दिया। तभी छिपे माओवादियों द्वारा उन पर भीषण गोलीबारी हुई। इस करो या मरो की स्थिति में श्री विकास जाखड़ ने अपने बहादुर कमांडो के साथ माओवादियों के खिलाफ एक तेज जवाबी गोलीबारी शुरू कर दी। सब इंस्पेक्टर मोहम्मद रियाज आलम अंसारी ने अपने स्काउट के साथ पीछे हटते हुए माओवादियों पर सामने से गोलीबारी जारी रखी। सैन्य बलों की इस निर्भीक कार्रवाई से माओवादियों को अपनी जगह छोड़नी पड़ी। मुठभेड़ स्थल की गहन तलाशी से 6 लाशें बरामद हुई। इस प्रकार श्री विकास जाखड़, सहायक कमांडेंट और सब इंस्पेक्टर जीडी मोहम्मद रियाज आलम अंसारी ने ऑपरेशन के दौरान अपने जीवन को दांव पर लगाते हुए अद्भुत नेतृत्व क्षमता, दृढ़ता, साहस तथा कर्तव्य निर्वहन के प्रति निस्वार्थ समर्पण का परिचय दिया। श्री विकास जाखड़। मोहम्मद रियाज आलम अंसारी। लांस नायक दीपक आले, प्रथम बटालियन, 3री गुरखा राइफल्स। अप्रैल 2017 में जम्मू और कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के क्षेत्र में पोस्ट कमांडर की ड्यूटी करते समय लांस नायक दीपक आले ने अपनी पोस्ट के आगे कुछ संदेहास्पद हरकत महसूस की और तुरंत अपनी आसपास की पोस्टों को आगाह किया। वे अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की बिल्कुल भी परवाह न करते हुए अत्यंत दुर्गम बर्फीले ऊंचे भूभाग में बहुत तेज गति के साथ रेंगते हुए आतंकवादियों के नजदीक पहुंच गए, जो बाढ़ को पार करने वाले थे। जब आतंकवादी उनके सटीक निशाने पर पहुंचे, तब उन्होंने स्वचालित बंदूक से सटीक और भारी गोलीबारी करते हुए दोनों आतंकवादियों को वहीं ढेर कर दिया। उसके उपरांत उन पर आतंकवादियों के समूह द्वारा भीषण गोलीबारी की गई,
परंतु इसके बावजूद वे उत्तम युद्ध कौशल का प्रदर्शन करते हुए 100 मीटर रेंगते हुए तुरंत कार्रवाई दल को सामरिक रूप से उपयुक्त स्थिति को पाने में सहायता के लिए पहुंचे, जिसके परिणाम स्वरूप तीसरा आतंकवादी भी मारा गया। तत्पश्चात उन्होंने चौथे आतंकवादी को देखा और उसकी सही स्थिति बताकर उसे मार गिराने में सहायता की। लांस नायक दीपक आले ने कर्तव्य निष्ठा से ऊपर उठकर अदम्य साहस, निस्वार्थ समर्पण और वीरता का प्रदर्शन किया। लांस नायक दीपक आले। कैप्टन अब मेजर प्रदीप शौर्य आर्या, 106 इन्फेंट्री बटालियन प्रादेशिक सेना, पैरा संबद्ध, 4th बटालियन पैराशूट रेजिमेंट विशेष बल। 28 मई 2017 को लगभग रात के 10:30 बजे जम्मू और कश्मीर के बारामूला जिले में नियंत्रण रेखा के पास 4 से 6 आतंकवादियों की आवाजाही का पता लगते ही कैप्टन प्रदीप शौर्य आर्या उत्कृष्ट वीरता का परिचय देते हुए उन्हें रोकने के लिए माइन वाले क्षेत्र में अपने साथी के साथ आगे बढ़े और तत्काल गोलीबारी प्रारंभ कर दी। आतंकवादी उप विभाजित हो गए और 3 आतंकवादियों के एक समूह ने उन पर भारी गोलीबारी कर दी। निर्भीकता और शांत दिमाग का प्रदर्शन करते हुए उन्होंने एक गिरे हुए वृक्ष के ऊपर बैठकर आतंकवादियों को देखा और उनमें से एक को वहीं मार गिराया। इस साहसिक कार्रवाई से अन्य आतंकवादी घबरा गए और उन्होंने उनके साथी की ओर अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। अपने साथी की जिंदगी को गंभीर खतरा भांपते हुए कैप्टन आर्या योद्धा रूपी पहल और प्रेरणात्मक युद्धक नेतृत्व का परिचय देते हुए स्वयं की सुरक्षा की परवाह न करते हुए अपने छिपने के स्थान से आगे बढ़े और पर्ण समूह में छिपे हुए दोनों आतंकवादी के सीधे संपर्क में आ गए, जिनको उन्होंने बड़ी नजदीक से मार गिराया। इस कार्रवाई से दूसरा समूह भी घबरा गया, जिनको बाद में रिमोट कंट्रोल्ड इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइसेस द्वारा मार गिराया गया। कैप्टन प्रदीप शौर्य आर्या ने आतंकवादी गोलीबारी का मुकाबला करते हुए अदम्य साहस और कर्तव्य से उठकर मृत्यु का सामना करने में असाधारण पराक्रम का उदाहरण प्रस्तुत किया। मेजर प्रदीप शौर्य आर्या। पैराट्रूपर मंचू, 12वीं बटालियन, द पैराशूट रेजिमेंट विशेष बल। जून 2017 को संदिग्ध आतंकवादियों की गतिविधि के बारे में सूचना प्राप्त होने पर नागालैंड के मोन जिले के तिजित क्षेत्र में मोबाइल व्हीकल चेक पोस्ट स्थापित करने के लिए संयुक्त दल तैयार किया गया। रात के लगभग 10 बजे 2 ऑटो रिक्शा MVCP का उल्लंघन करके आगे निकल गए और उनका पीछा करने पर भी अचानक रुक गए। आतंकवादी नीचे उतरे और अपने दल पर भारी गोलीबारी शुरू कर दी तथा ग्रेनेड दाग दिए। इस गोलीबारी का मुकाबला करने में एक अधिकारी और 2 अन्य रैंक के सैनिक गंभीर रूप से घायल हो गए। पैराट्रूपर मंचू गंभीर रूप से जख्मी होने के बावजूद भारी गोलीबारी के बीच आगे बढ़े और जवाबी गोलीबारी के साथ उनका सामना किया तथा 3 आतंकवादियों को मार गिराने में सफल हुए। ग्रेनेड के हमले से उनकी दोनों आंखें और कंधा गंभीर रूप से जख्मी हो गए। लगातार बहते हुए खून की तनिक भी परवाह न करते हुए उन्होंने अपने दल के 2 सदस्यों को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया। पैराट्रूपर मंचू ने भारी गोलीबारी के बीच वीरता तथा सूझबूझ का प्रदर्शन किया और खुद के गंभीर जख्मों की परवाह न करते हुए उन्होंने उच्च कोटि की पहल और दृढ़ संकल्प से अपने दल के सदस्यों का जीवन बचाया। पैराट्रूपर मंचू। हवलदार रविंद्र थापा, 4 प्रथम बटालियन, द गोरखा राइफल्स। जून 2017 की रात्रि को जम्मू और कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में नियंत्रण रेखा पर युद्ध विराम उल्लंघन की घटनाओं के दौरान हवलदार रविंद्र थापा ने क्षेत्र में नजर बनाए रखा और 4 से 5 आतंकवादियों की गतिविधि की पहचान की, जो घुसपैठ रोधी बाधा प्रणाली में दूसरी तरफ से घुसपैठ कर रहे थे। उन्होंने तत्काल अपने प्लाटून कमांडर को सतर्क कर दिया और आतंकवादियों की गतिविधि की रिकॉर्डिंग प्रारंभ कर दी।
आतंकवादियों के घुसपैठ करने के पश्चात भारी गोलीबारी के बीच अपनी सुरक्षा की परवाह न करते हुए अपनी जगह बदली और घात लगाकर एक आतंकवादी का सफाया कर दिया। जब अन्य 2 आतंकवादी भाग निकलने के फिराक में थे, उन्होंने प्रभावी गोलीबारी जारी रखी, जिसके परिणाम स्वरूप एक आतंकवादी ने गिरे हुए पेड़ की ओट ले ली। वे रेंग कर आगे बढ़े और ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां से उन्होंने छिपे हुए आतंकवादी को भी मार गिराया। हवलदार रविंद्र थापा ने अदम्य साहस, शौर्य और उच्च स्तरीय जागरूकता का परिचय दिया, जिससे 2 आतंकवादियों को समाप्त करने में सफलता मिली। हवलदार रविंद्र थापा।